First of all, I will go to slides. So if we have a little bit preview, so we can recall that we started with the designing digital flip-flop. We said that digital flip-flop is basically most basic building block of all sequential systems, all sequential designs. And there were we designed basically three kinds of digital flip-flops. One flip-flop was digital flip-flop without reset signal. Another flip-flop was with asynchronous reset, and third flip-flop was with asynchronous reset and synchronous enable signal. Okay, and sorry we also learned that basic digital systems. We also learned that basic digital systems, I mean synchronous digital systems, there are two kinds. One are called milli machine based systems, other systems are called Moore machine based systems. And both machine based systems have three common parts. One part is called next state logic, part is called state register, and third part is called output logic. We also understood that first part is a combinational logic, second part is a D flip flop or sequential logic, and third part is a combinational logic. And the only difference between milli machine and Moore machine is that the output in milli machine output is a function of state register output and input. But Moore machine output is the function of only state register output. So alternatively, we can say in the milli machines, output depends upon the current state and the current input. But in Moore machine, output only depends on the current state, not on the input. Okay. We also did some example, D flip flop example and decade counter example to understand these milli machines and Moore machines. Okay. When we did three kinds of digital flip flops, then we said that all these flip flops can be designed using single segment. Single segment, I mean combining these all three parts or using single always block. They can be designed using standard method, means designing each block separately. Okay, so we did an example. We did an example where we design all three blocks separately. So this was the example. This was the example where we designed state register part here, we designed the next state logic part here, and we designed the output logic part here. So all these parts, three parts were designed separately and each part was designed using always block. This always block designs sequential circuit, this always block designs combinational circuit, and this always block designs another combinational circuit. And I told you, when we are using always block and we are designing sequential circuit, we always put clock in the sensitivity list. We have to have positive edge or negative edge clock signal in the sensitivity list. And then other signals, if there's a reset signal, then we have to put reset signal. If there's the other control signal, we have to put another control signal. But clock signal is a must. Positive edge or negative edge clock signal is must in the sensitive list for sequential circuits. But if we are designing combinational circuit, we do not need to enlist any clock here. We just have to write always at the rate and star sign. Or we can write always at the rate bracket, star sign and bracket closed. That basically indicates that we are designing combinational circuits. Another difference between combinational circuit and sequential circuits is that in sequential circuits we were using non-blocking operator, but in combinational circuits we are using blocking operators. So this is combinational circuit, this is also combinational circuits. So no need to put clock here, no need to put clock here.
and no need to put non-blocking operators here, no need to put non-blocking operators here, less than equal to sign. Got it? So that's the preview of yesterday class. Okay, so let's move to the another topic. Next topic is register. So D flip-flop is the basic building block of all sequential systems. So if we combine if we combine various D flip-flops and they all are controlled by the same clock and same reset signals, it is called a register. Another way, if we want to store a single bit, we use a digital flip-flop. If we want to store more than single bits, more than one bit, then we have to combine the D flip-flops, and that combination of D flip-flops is basically called register. So register can be of any size. It can be of 2-bit, it can be of 4-bit, it can be of 8-bit, 16-bit, of any size. Okay. I think there's no need to dig into. Only thing which is of useful here is all D flip-flops must be controlled by the same clock and reset signal. That is called register. Okay, so let's design a register. Let's design a register using Verilog. Okay, let's design 8-bit register with asynchronous reset. Okay, if register is 8-bit, then input D will be 8-bit and output range will be 8-bit. Okay, and we are designing in a single block. So we will say if reset is asserted, Q is equal to 0, else Q is equal to 2. So the procedure is same as designing D flip-flop. Only thing we have changed here is that we have initialized the input of 8 bits. We have initialized output ports of 8 bits. So input port is 8-bit, output port is 8-bit. That's the only difference between, in terms of designing, that's the only difference. Okay, so this is the register. Okay, after the register, there is another important thing to remember. If we want to store a single bit, we are using digital flip-flop. If we want to store multiple bits, but in a single dimension, we will use registers. But in some cases, we want to store a data which is multi-dimensional data. Let's say it is a 2-dimensional data. Then we have to use register files. And so in some books it is also called memory, and in some books it is also called register array. करना है, हम कहते हैं कि भाई हमने एक कमांड यूज की है पैरामीटर. पैरामीटर का क्या मतलब है? पैरामीटर इज सेम एज यूजिंग कांस्टेंट इन अदर लैंग्वेजेस, राइट? एज वी यूज कांस्टेंट इन अदर लैंग्वेजेस, हेयर वी यूज पैरामीटर. तो हमने कहा है कि भाई b इज इक्वल टू 8, w इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो b इज इक्वल टू 8 का मतलब ये है कि हम नंबर ऑफ बिट्स हमें कितने चाहिए. ठीक है, हम कहते हैं कि भाई हमें जो रजिस्टर चाहिए, उस रजिस्टर में, हर एक रजिस्टर में कितनी बिट्स चाहिए? 8 बिट्स चाहिए. ठीक है, और दूसरा पैरामीटर हमने लिखा है w इज इक्वल टू 2. इसका मतलब है नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स. अच्छा, अगर एड्रेस के लिए हमने 2 बिट्स असाइन किए हैं, तो इसका मतलब है टोटल एड्रेसेस बनेंगी 4. ठीक है, 2 बिट के 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0, 1, 2, 3. तो इसका क्या मतलब है? हमारे पास 4, ऐसा समझे कि हमारे पास 4 रोज हैं. एक रो में 8 बिट्स सेव हो सकते हैं
और 8 बिट्स की ऐसी हमारे पास 4 रोज हम बनाने जा रहे हैं। क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं। अगर बात समझ में नहीं आए तो वी विल कम बैक। समझ में आ गई सर। हाँ, ठीक है। तो what are the inputs and what are the output ports we need? First of all, we need clock, and then we will need write enable. Okay, because we are going to design a memory, so we need some extra signals. Okay, so extra signals are write enable, means we want to write when enable is asserted, otherwise we don't want to write. And we need another signal which is write address. जब आप मेमोरी में राइट करना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस लोकेशन पे, किस एड्रेस पे राइट करना चाहते हैं। सो वी नीड अनदर सिग्नल फॉर राइट एड्रेस। और आप रीड करना चाहते हैं मेमोरी से तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई किस एड्रेस से रीड करना चाहते हैं। डेफिनेटली वी नीड रीड एड्रेस सिग्नल। चौथा इनपुट हमें जो चाहिए, पांचवा इनपुट जो हमें चाहिए वो डब्ल्यू डेटा का चाहिए। मतलब फर्स्ट वंस आपने एड्रेस बता दी तो फिर आप उसको डेटा देनी पड़ेगी कि किस एड्रेस पे, उस एड्रेस पे कौन सी डेटा से सेव करनी है। तो एड्रेस इस इनपुट, एड्रेस इनपुट से आएगी, डेटा इस इनपुट से आएगी, और डेटा किस इनपुट से रीड होगी, इस इनपुट से रीड होगी। ठीक है। और इस चीज़ का ख्याल रखें, सॉरी, इस चीज़ को नोट करें कि ये सारे इनपुट पोर्ट्स हैं, सिर्फ एक पोर्ट हमारा आउटपुट का है। वो कौन सा पोर्ट है जो आउटपुट का है? वो है रीड का। सो रीड का पोर्ट हमेशा आउटपुट पोर्ट होगा। ठीक है, बाकी सारे पोर्ट्स राइट के होते हैं मेमोरी में, क्योंकि हम वहाँ से रीड कर रहे हैं तो डेटा वहाँ से निकल के बाहर की तरफ जाएगी। दैट्स वाई इट इज रीड पोर्ट। Okay, so this is the port initialization. After the port initialization, we need to declare a variable. We need to declare a टू डायमेंशनल रेंज वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि अभी हम टू डायमेंशनल पे काम कर रहे हैं, तो अभी हमें डिक्लेरेशन टू डायमेंशनल की करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, वन डायमेंशनल हमारा रजिस्टर होता था या मेमोरी होती थी। हम कहते थे कि भाई रेंज B-1 से लेकर 0 से लेकर B-1 तक। तो ये कैसे क्या बन जाता, अगर इसको डिकोड करें तो ये हो जाता है 0 से लेकर 7 तक। तो 0 से लेकर 7 तक के कितना बनता है, 0 से 11 तक 8 बिट हमारी रजिस्टर बन जाती है। ठीक है, मगर यहाँ पे बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे हमने टू डायमेंशनल बनाना है, हमने रजिस्टर फाइल बनानी है। ठीक है, सो वी हैव टू आल्सो डिफाइन अनदर डायमेंशन। ये तो हमने कॉलम डिफाइन कर दिए, अभी हमने उसकी रोज भी डिफाइन करनी है। सो हाउ टू डिफाइन रोज? सो हमने उसका नाम लिख दिया कि भाई वो जो मेमोरी होगी उसका कोई ना कोई नाम होना चाहिए, उसका नाम है अरे रेज। अच्छा, उसके बाद हमें बताया कि हमारे पास एड्रेस बिट्स कितनी हैं, 2 एड्रेस बिट्स हैं। तो 2 एड्रेस बिट्स की जो टोटल जो टोटल रोज बनेंगी वो कितनी बनेंगी? वो बनेगी 2⁻⁻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 ⁻
रेस टू पावर 2 का क्या मतलब हुआ? 2 रेस टू पावर 2 का मतलब हो गया 4, 4 माइनस 1 इसका थ्री मतलब हो गया 3। तो ये हो गई 0 टू 3, मतलब कितनी इन हमारी फोर रोज बनेगी? 4 रोज बनेगी। 4 ठीक है, 4 रोज बनेगी और हर एक रो में कितने कॉलम्स होंगे? 8 8 नहीं होंगी 2 पावर 3। हाँ, 8 कॉलम्स होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ मेमोरी डिक्लेयर करती है। आगे इसका लॉजिक बनाएंगे कि वो मेमोरी रीड कैसे होगी, राइट कैसे होगी, रीसेट कैसे होगी, चलेगी कैसे, उसका सारा लॉजिक इसमें बनाते हैं। ठीक है, हमने कहा कि भाई ये memory is a sequential component, that's why we need a clock to read the memory, to write the memory। हमने कहा कि भाई पॉजिटिव एज क्लॉक से कंट्रोल करो उसको। अगर उसका राइट इनेबल हो जाए, इफ राइट इनेबल हो जाए तो आगे क्या करना है? तो हमें ये करना है कि जो डेटा है w डेटा, वो किसको असाइन हो जाए? वो अरे रेंज को असाइन हो जाए। एंड साइमल्टेनियसली किस एड्रेस पे
वो राइट हो जाए, वो इस एड्रेस पे राइट हो जाए, ठीक है। सो वी हैव provided the index, we have provided the address in the index of the variable, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, अगर इसकी वैल्यू w एड्रेस की, मतलब राइट एड्रेस की वैल्यू 0 है, तो जो भी डेटा आएगी वो उसकी पहली रो में सेव हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू ये 1 बन जाती है, तो वो जो भी डेटा आएगी यहाँ से वो उसकी दूसरी रो पे सेव हो जाएगी। अगर फिर तीसरी एड्रेस आती है तो तीसरी रो पे आ जाए, सेव हो जाएगी। अगर चौथी एड्रेस आ जाती है तो फिर उसकी 4th नंबर रो पे सेव हो जाएगी, ठीक है, जो भी डेटा हो। ये तो हमारा हो गया राइट ऑपरेशन। अब रीड ऑपरेशन का लॉजिक है। रीड ऑपरेशन क्या करते हैं, हम कहते हैं कि असाइन आर डेटा, ठीक है, मतलब अरे रेज से रीड करना है। अरे रेज इज ए मेमोरी, तो उसको हम एड्रेस देंगे कि भाई ये एड्रेस है, इस एड्रेस से डेटा उठाओ या रजिस्टर उठाओ या उससे डेटा उठाओ, वो डेटा उठा के आर डेटा को असाइन कर दो, ठीक। इससे क्या होगा, जिस एड्रेस की हम बात करेंगे उससे डेटा वो कलेक्ट करके रीड कर देगा, मतलब रीड आर डेटा जो पोर्ट होगा आउटपुट पोर्ट को असाइन कर देगा। ओके, सो सो दैट्स द एग्जांपल फॉर द रजिस्टर फाइल, ठीक है। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो रजिस्टर था उसको हमने जब हमने इनिशियलाइज कराया तो उसमें डायमेंशन सिर्फ एक था, 0 to 7, दूसरा कोई डायमेंशन नहीं था। जब हमने रजिस्टर फाइल इनिशियलाइज कराई तो उसके 2 डायमेंशन थे। उसका एक ये जो डायमेंशन था, ये आप ये कह लेंगे ये कॉलम्स हैं और ये इसके रोज हैं, ठीक है। सर हाँ यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है सिग्नल डेक्लेरेशन, अब इसी रजिस्टर की इंस्ट्रक्शन में देखें b-1 और फिर 0, फिर उसमें अरे रजिस्टर 2 रेज़ टू पावर w-1 0। ये जो इंस्ट्रक्शन है आया ये एक ही फाइल की इंस्ट्रक्शन है या ये दोनों डिफरेंट है? हाँ, अच्छा, इसमें यह है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये बेसिकली जैसे हम पहले रजिस्टर की लिखते थे, रजिस्टर डिफाइन करते थे, उसमें हम ये लिखते थे कि यहाँ से शुरू करते थे, ठीक है, रैच, और फिर उसका कोई नाम दे देते थे, ठीक है, आर नेक्स्ट लिख लेते थे या आर रैच लिख लेते थे, कोई भी नाम दे देते, और उसके बाद हम उसके डायमेंशन देते थे कि भाई 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 3 तक, उसकी उसकी कॉलम्स बता देते थे कि भाई इतने कॉलम्स का रजिस्टर बनाओ, ठीक है। वो होता था 1 डायमेंशनल। अब हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल की, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। हम कह रहे हैं कि भाई रजिस्टर डेटा टाइप होना चाहिए उसका, और उसके कॉलम्स कितने होने चाहिए, 0 से लेकर b-1 तक उसके कॉलम्स होने चाहिए, और उसका नाम क्या बनेगा, नाम उसका बनेगा अरे रेज, और उसकी रोज कितनी होनी चाहिए, रोज इतनी होनी चाहिए, 0 से लेकर 2 रेज टू पावर w-1, ठीक है। तो ये कितना बनता है, 2 रेज टू पावर w-1 बनता है 3, तो ये हो जाएगी 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो ये सही सर। जब हम उसको मेमोरी को जैसे ऐसा समझें कि जब हम मेमोरी को क्रिएट कर रहे हैं, ये यस सर, एलोकेट कर रहे हैं डेटा, नहीं एलोकेट नहीं, आप जो ना वो इनिशियलाइज कर रहे हैं ना आप सर। फिर उसी में चले जाते हैं ना मैटलैब के सिनेरियो में, ठीक है। इट इज़ वेरी Right, कॉमन sir. टू स्विच टू और थिंक इन टर्म्स ऑफ मैटलैब और इन टर्म्स ऑफ C++, ठीक है। मगर मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट लैंग्वेज फ्रॉम C++ एंड मैटलैब। हेयर वी आर क्रिएटिंग Right, ए sir. हार्डवेयर, ठीक है। ये ऐसे समझे कि हम FPGA में जाके एक मेमोरी बना रहे हैं, सही सर, ठीक है, समझ आ ठीक है। गया। मेमोरी एलोकेट तब करते हैं जब हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसमें रैम है, उस रैम में जाके कुछ मेमोरी हम एलोकेट कर रहे हैं ये वेरिएबल को, वो मेमोरी बनी बनाई हमारे पास होती है। यहाँ पे FPGA में हम मेमोरी बना रहे हैं, अपनी मेमोरी बना रहे हैं, सही सर, समझ आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी मेमोरी बनाई और फिर हमने लॉजिक लिखा कि भाई इस मेमोरी को यूज कैसे करना है, इसको रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, ये उसका लॉजिक है। ये राइट ऑपरेशन का लॉजिक है, ये रीड ऑपरेशन का लॉजिक है। Okay, now it is clear. Yes sir, it is clear.
so let's go to the next construct. अच्छा, अब आते हैं रजिस्टर, तो हो गया, रजिस्टर फाइल भी हो गई, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं बुक पे, तो ये हमारा बुक है। आई होप एवरीबॉडी कैन सी दिस बुक, ठीक है। दिस इज द बुक वी विल बी फॉलोइंग at least for today or tomorrow next few lectures. Okay, this is the book and this is the only chapter we will be following, fourth chapter. Okay, so यहाँ तक हमने कर लिया रजिस्टर फाइल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्ट रजिस्टर्स, ठीक। कुछ रजिस्टर्स ऐसे होते हैं जिनका मकसद सिर्फ स्टोरेज नहीं होता, उनका कोई स्पेसिफिक पर्पस, दूसरा पर्पस भी हो सकता है। जैसे शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं, आप डीएलडी में पढ़ के आए कि भाई शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं और उसमें कई किस्म के शिफ्ट रजिस्टर्स हैं। देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स। वन ऑफ द बेसिक शिफ्ट रजिस्टर्स आर सीरियल शिफ्ट रजिस्टर्स, अदर शिफ्ट रजिस्टर्स आर कॉल्ड पैरेलल शिफ्ट रजिस्टर्स, ठीक है। जिसमें डेटा सीरियली मूव हो तो वो सीरियल से शिफ्ट रजिस्टर होते हैं, जिसमें पैरेलली डेटा मूव हो, मूव का मतलब क्या है, इन एंड आउट हो, तो उसको हम कहते हैं पैरेलल रजिस्टर्स, ठीक है। और पैरेलली कुछ रजिस्टर्स ऐसे होते हैं जो कॉम्बिनेशंस में आते हैं, मतलब उसमें सीरियल पैरेलल मिक्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे रजिस्टर होते हैं जिसमें सारे ऑप्शन एक ही वक्त मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक एग्जांपल करते हैं, उसका नाम है फ्री रनिंग शिफ्ट रजिस्टर। अच्छा, फ्री रनिंग शिफ्ट रजिस्टर क्या करता है? फ्री रनिंग शिफ्ट रजिस्टर क्या करता है, वो अपने कंटेंट्स को शिफ्ट करता है इधर टू द लेफ्ट साइड और टू द राइट साइड बाय वन पोजीशन, ठीक है। एंड दैट एग्जीक्यूशन इज परफॉर्म्ड ऑन एवरी साइकिल, हर साइकिल के बाद वो जो उसका लॉजिक होगा, वो अगर लेफ्ट लॉजिक है तो लेफ्ट शिफ्ट करेगा, अगर राइट लॉजिक है तो राइट शिफ्ट करेगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल, ठीक है। सो पैरामीटर n is equal to 8, ठीक है। सो पैरामीटर इज लाइक ए कांस्टेंट and n is equal to 8 means if we are going to design 8-bit shift register, ठीक है। what should be the inputs, इनपुट क्या होना चाहिए? क्लॉक तो बहुत ज़रूरी है, वेरी इसेंशियल, रीसेट इज एसेंशियल। उसके बाद तीसरा इनपुट हमारे पास चाहिए सीरियल एन, ठीक है, कि भाई डेटा आएगी वो सीरियली आएगी, ठीक है। सीरियली का मतलब है, क्या मतलब होता है? सीरियली का मतलब होता है कि एक टाइम पे एक बिट आएगी, या एक पॉजिटिव एज पे एक बिट अंदर आएगी और उसी पॉजिटिव एज पे एक बिट बाहर निकलेगी, उसको कहते हैं सीरियल इन सीरियल आउट। और पैरेलल इन पैरेलल आउट में क्या होता है कि मल्टीपल बिट्स अंदर आ सकती है और मल्टीपल साइमल्टेनियसली बाहर जा सकती है। आउटपुट वायर एस आउट, ठीक है। एस आउट क्या है? सीरियल आउट, मतलब एक बिट आपकी बाहर जाएगी, उसके लिए आउटपुट पोर्ट चाहिए, ठीक है। आपको इंटरनल रजिस्टर्स चाहिए, इंटरनल रजिस्टर्स भी कितने चाहिए? उसी साइज के चाहिए, आर रेज और आर नेक्स्ट, ठीक है। अब ये याद रखें कि ये जो डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं, ये डिज़ाइन हम स्टैंडर्ड टेम्पलेट पे बनाने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड टेम्पलेट से क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि भाई जो हमने देखा था सिंक्रोनियस डिजिटल सिस्टम्स का, वो नहीं था कि नेक्स्ट स्टेट लॉजिक अलग से बनाना है, स्टेट लॉजिक अलग से बनाना है और आउटपुट लॉजिक अलग से बनाना है, ठीक है। So this is the body. When I say body or register, it means this is a central part, ठीक है। तो सेंट्रल पार्ट में क्योंकि हमारा सीक्वेंशियल पार्ट होता है, वी नीड ए क्लॉक एंड वी नीड ए पॉजिटिव एज रीसेट सिग्नल, ठीक है। वही लॉजिक है जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इफ रीसेट तो आर रेज हमारा 0 हो जाए, वरना आर रेज हमारा आर नेक्स्ट में चला जाए, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये हम पहले भी इसको देख लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट लॉजिक हमने डिफाइन करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपको सारे एग्जांपल जो अपकमिंग एग्जांपल्स होंगे वो सारे समझ में आ जाएंगे। अच्छा, तो पहली बात ये जहन में रखें कि हम
लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर बना रहे हैं या राइट शिफ्ट रजिस्टर बना रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बना रहे हैं, हम राइट शिफ्ट रजिस्टर बना रहे हैं, ठीक है। अब राइट शिफ्ट रजिस्टर का क्या मतलब होता है, राइट का मतलब होता है कि राइट से डेटा इन होगी और सारी डेटा राइट मूव होगी, और लेफ्ट बिट जो फाइनल जो लेफ्ट पोर्ट होगा वहां से डेटा बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, शिफ्ट्स राइट्स, ठीक है। सो डेटा जब शिफ्ट होगी राइट की तरफ, ठीक है, सॉरी आई हैव टू रिपीट दिस सेंटेंस, ठीक है। डेटा जब राइट की तरफ शिफ्ट होगी तो डेटा कहाँ से इन होगी, ठीक है। डेटा जब राइट की तरफ, आप अपने कॉन्टेक्स्ट में इमेजिन करें कि राइट की तरफ जब डेटा शिफ्ट हो रही है तो डेटा इन कहाँ से होगी, लेफ्ट से इन होगी और राइट से आउट हो जाएगी, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर? क्लियर है सर, Yes, लेकिन सर sir. आपने पहले कुछ और कहा था, अभी सर आपने चेंज किया। हाँ हाँ, सो सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, ठीक है। राइट अच्छा, से, मतलब ये अभी वाला सही है। अभी वाला सही है, ठीक है। जब ठीक आप है सर। राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो आप अज्यूम करें कि आपके लेफ्ट हैंड से जो बिट्स हैं वो राइट हैंड साइड की तरफ जा रही हैं आपका, ठीक है। तो डेटा जो इन होगी वो आपकी लेफ्ट पे इन होगी और राइट से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो जब आपकी डेटा लेफ्ट से इन होगी उसका मतलब ये है कि आपकी डेटा एमएसपी पे इन होगी और आपकी यहाँ से निकल के एलएसपी से या राइट हैंड साइड से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि हम आपकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम मोस्ट लेफ्ट बिट भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है इस रजिस्टर का। तो यहाँ से डेटा इन होगी तो एक तो बिट ये हो जाएगी जो नई बिट आएगी, ठीक है। तो पुरानी जो बिट्स होंगी वो कहाँ पे चली जाएंगी, ठीक है। जो बाकी जो बिट्स होंगी जो स्टार्ट होंगी 1 से लेकर n-1 तक। अब इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि हमने 0 से लेकर n-1 नहीं लिखा, ठीक है। वैसे इंडेक्स जो होती है वो 0 से लेकर n-1 होती है, ठीक है। हमने लिखा है 1 से लेकर n-1। अच्छा, 1 से लेकर n-1 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो राइट मोस्ट बिट थी, जो ऐसा समझें कि जो हमारी एलएसबी थी उसको हमने इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो राइट से बाहर चली जाती है, ठीक है, वो राइट से बाहर निकल जाएगी। और जो सेकंड एलएसबी होगी वहां से लेकर जो सेकंड एमएसबी तक, ठीक है, सेकंड एलएसबी से लेकर आपकी एमएसपी तक वो असाइन हो जाएंगी करंट रजिस्टर, ठीक है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है अभी आपके पास? यस सर। यस सर। हाँ, तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सर सा, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है सर, छोड़े। हाँ नहीं यार, राइटिंग पे ना जाएं, ठीक है। फोकस करें कि ये चीज़ हमें समझ में आ जाए, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूँ कि हम 4 बिट का बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरफ से ट्रेवल करके इस तरफ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका बेसिकली लेफ्ट है और ये आपका राइट है, ठीक है। सो यहाँ से डेटा आएगी, यहाँ से मूव हो जाएगी, ठीक है। सो इनपुट पोर्ट का नाम क्या है, इनपुट पोर्ट का आपका नाम है एस इन, आउटपुट पोर्ट का नाम है एस आउट। ओहो, इतनी बुरी राइटिंग, हमारा बस नज़र लगा दिया। ठीक है। अच्छा, ये हमें पता है कि जो इस शिफ्ट रजिस्टर का आउटपुट होगा वो इसके इनपुट के साथ कनेक्टेड होगा, इसका आउटपुट इसके इनपुट के साथ कनेक्टेड होगा, इसका आउटपुट इसके इनपुट के साथ कनेक्टेड, ये इंटरनली आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट, ठीक है। अब जब इस तरफ शिफ्ट होती है तो हो क्या रहा होता है, फॉर एग्जांपल ये आपकी, सॉरी, ये आपकी जो डेटा है ये D3 है। ओ हो, इतनी बुरी राइटिंग मेरी तो बचपन में भी नहीं थी भाई।
नहीं जीरो। सर, आपको फील नहीं हुआ थी इस वजह से। अच्छा ठीक है, तो ये ऐसे समझेंगे, ये इस वक्त इसकी ये डेटा है D0 D1 D2 D3, ठीक है। अब आ जाती है, अब जैसे शिफ्ट होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा S1, सॉरी S इन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा D3, यहाँ पे क्या आ जाएगा D2, यहाँ पे क्या आ जाएगा D1, और यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा D0, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस करें, ठीक है। अगर इसको मैं अगर लिख दूँ, इंडेक्स की फॉर्म में लिख दूँ, तो ये क्या बन जाएगा D N, सॉरी D3 से लेकर 1 तक, ठीक है।